بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں۔ تینوں بہت قریب تھیں اور شہر سے باہر ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں سب سے الگ تھلگ زندگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ ماں باپ مر چکے تھے اور کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں تھا تو ان کا آسرا بنتا۔ تینوں بہنیں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی۔ کہنے کو تو تینوں خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی دونوں بڑی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ دونوں سے زیادہ عقل مند اور سیانی بھی تھی۔ بڑی بہنیں اسے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھی اور گھر کا سارا کام کاج بھی اس سے کراتی تھی، کیونکہ یہ ان سے چھوٹی تھی، اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی اور منہ سے ایک لفظ تک نہ بولتی تھی۔ اس پر بھی بڑی بہنوں کا جلاپا کم نہ ہوتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ تینوں بہنیں کام کاج اور کھانے پکانے سے فارغ ہو کر بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ سب سے چھوٹی بہن، جس کا نام مہناز تھا، اپنی بہنوں سے کہنے لگی، باجی جان، آج میں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اتنا عجیب و غریب کہ بیان نہیں کر سکتی، اور اگر یہ خواب سچ نکلا تو ہماری قسمت بدل جائے گی اور ہم بھی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ دونوں نے یک زبان ہو کر پوچھا، وہ خواب ہم بھی ذرا سنیں۔ مہناز نے جواب دیا، خواب میں مجھے ایک پرندہ ملا، وہ گاتا بھی تھا اور باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ پرندہ اڑتا ہوا میرے کندھوں پر آن بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگا، ارے مہناز، خوش ہو جا کہ تیری غریبی کے دن اب تمام ہوئے، قسمت تم پر مہربان ہوا چاہتی ہے، کوئی دن آئے گا تمہاری گود خوشی کے پھولوں سے بھر جائے گی، شہزادہ ہمایوں تم سے شادی کر لے گا، تم اس ملک کی ملکہ بن جاؤ گی، شادی کے بعد تمہارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی، اس کے ماتھے پر ایک ستارہ جگمگا رہا ہوگا، اس کا نام تم شہزادی سمیرہ رکھنا، پھر ایک کے بعد دیگر 2 بیٹے ہوں گے، بڑے کا نام سعید اور چھوٹے کا نام ولید رکھنا۔ اور اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ مہناز نے اتنا کہا اور اپنی بہنوں کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ اس کا خواب سن کر خوش ہوئی ہوں گی، مگر وہ تو جل بھن کے رہ گئی۔ مہناز کے خواب نے ان کے دل میں حسد کے کانٹے چبھو دیے تھے۔ انہوں نے نفرت سے مہناز کو دیکھا اور کہنے لگی، کیوں بے پر کی اڑاتی ہو؟ وہ سمجھتی تھی کہ بہنیں اس کا خواب سن کر پھول ہی نہ سمائیں گی، سینے سے لگائیں گی، مگر یہاں تو بات الٹ ہو گئی۔ بہنوں کو جلاپے کا روگ لگ گیا اور مہناز منہ لٹکا کے رہ گئی۔ اتنے میں ایک دم دروازہ کھلا اور ایک اجنبی ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تینوں بہنیں مارے ڈر کے کانپنے لگی، ایک دوسرے کو تاکنے لگی۔ اجنبی نے ان کی حالت بھانپ لی اور جلدی سے بولا، گھبراؤ نہیں، میں کوئی چور ڈاکو نہیں ہوں، اس ملک کا شہزادہ ہوں، ہمایوں نام ہے اور تم سے ضروری کام ہے، میں بغیر اجازت چلا آیا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے تم تینوں بہنوں کی ایک ایک بات سنی ہے کہ میں باہر کھڑا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو اٹھ کھڑی ہو گئیں کہ شہزادے کے سامنے بیٹھے رہنا گستاخی ہے اور گستاخی کی سزا بڑی کڑی ہے۔ شہزادے نے کہا، بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو، اور اس پر تینوں بہنیں دم ساتھ کر بیٹھ گئی۔ شہزادے نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن نے جو خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کی تعبیر ابھی پوری ہوا چاہتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مہناز میری ملکہ بنے گی۔ اور تینوں بہنوں کو یوں لگا کہ جیسے وہ ایک بار پھر خواب دیکھ رہی ہیں۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ششدر سی ہو کر شہزادے کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادے نے کہا، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ انسان بڑا ہو یا چھوٹا، سب کی ایک ذات ہے۔ مہناز اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے اور سوجھ بوجھ میں باکمال، اسے ملکہ بنا کر ہم خوش ہوں گے۔ اس پر مہناز نے بڑے ادب سے کہا کہ شہزادہ حضور، ہم آپ کے غلام ہیں، اس لیے انکار کی جرات نہیں پاتے۔ دوسرے روز پورے ملک میں دور دور تک چراغاں کیا گیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزرا، جانوں کے پر لگا کے اڑا، اور وہ گھڑی آن پہنچی کہ مہناز ایک نوخیز کلی کا انتظار کرنے لگی۔ شہزادہ ہمایوں دشمن سے جنگ کرنے بہت دور گیا ہوا تھا۔ دونوں بہنیں شروع ہی سے مہناز کی دشمن تھی۔ ان کے ہاتھ میں خوب موقع آیا تھا کہ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیں۔ خدا خدا کر کے وہ نیک گھڑی آ پہنچی اور مہناز نے ایک چاند سی بچی کو جنم دیا۔ بچی کیا تھی؟ ایک اشاں کا ٹکڑا تھی، ماتھے پر 5 کرنوں والا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ دونوں بہنوں نے مہناز کو بے ہوش کا شربت پلا دیا کہ وہ بچی کو نہ دیکھ سکے۔ فوراً بچی کو اٹھایا اور اس کی جگہ کتے کا بلہ رکھ دیا۔ جس نے سنا تو دانتوں میں انگلیاں داب کے رہ گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو شہزادہ ہمایوں فتح یاب ہو کے وطن لوٹا۔ گھر آیا تو پتا چلا کہ شہزادی مہناز نے ایک کتے کے بلے کو جنم دیا ہے۔ بڑا حیران ہوا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، اور جب مہناز کو پتا چلا کہ شہزادہ جنگ سے واپس آ گیا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اس سے ملنے سے کترانے لگی۔ ہمایوں نے جب یہ دیکھا کہ مہناز شرمندگی محسوس کر رہی ہے تو اس نے اسے بلوایا اور کہا، تم کیوں نادم ہو؟ مہناز قدرت جو کرتی ہے
हमें उस किए पर सब्र और शुक्र करना चाहिए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब भी वैसी ही मोहब्बत है जैसी कि पहले दिन थी। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। अगले साल शहजादा हुमायूं फिर जंग के लिए चला गया और दोनों बहनों को एक बार फिर मौका मिल गया। आपके मेहनाज ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर बहनों ने उसकी जगह फिर कुत्ते का पिल्ला रख दिया। मेहनाज को होश आया तो उसके पहलू में कुत्ते का पिल्ला रखा था। बस देखते ही चीख मारकर बेहोश हो गई। शहजादा हुमायूं जंग से वापस आया तो फिर यही सुना कि मेहनाज ने कुत्ते के बिल्ले को जन्म दिया है। वो सुनते ही दिल थाम के रह गया, आंखें अश्कबार हो गई, अपने मुकद्दर पर आंसू बहाने लगा। तीसरे साल फिर यही वाकया पेश आया। जंग से वापस आते ही ये सुना कि शहजादी मेहनाज ने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। अब शहजादे ने मेहनाज को महल से निकाल दिया। मेहनाज ने बिल्ली के बच्चे को गोद में लिया और महल से बाहर आ गई और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती थी और अपनी राह चली जाती थी। बहुत सोचती थी कि यह सब कैसे हो गया, मगर कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। हाँ, एक वहम जरूर था कि मुमकिन है ये कार्रवाई उसकी बहनों ने की हो। खैर, अब क्या हो सकता था। चलते चलते वो एक इबादत गाह में पहुंची कि जहां बरसों से एक दानिशमंद बूढ़ा रहता था। मेहनाज ने रोते रोते अपनी बप्ता कही और बूढ़े से इमदाद चाही। दानिशमंद बूढ़े ने कहा कि मैं इस रात की तह तक नहीं पहुंच सका, इसलिए तुम्हें मशवरा देता हूं कि यहाँ से दूर, बहुत दूर एक समंदर है जिसे पत्थरों का समंदर कहते हैं। उस समंदर के दरमियान दो चट्टानें हैं। उन चट्टानों के दरमियान गाने वाले परिंदे का घोंसला है। अपनी बप्ता उस परिंदे से कहना, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और हाँ, ये शीशे की संदूकची, इसमें सुनहरा तीर बंद है। ये तीर तुम्हें पत्थरों के समंदर तक ले जाएगा। लेकिन याद रखो, रास्ते में तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करना चाहेंगे, पर मैं तुमसे कहता हूं कि किसी की बातों में ना आना और अपनी राह चलते जाना। जब तुम पत्थरों के समंदर तक पहुंच जाओ तो आगे बढ़कर गाने वाले परिंदों को पकड़ लेना। उस वक्त तुम्हें चारों तरफ से कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोर गुल सुनाई देगा। कई लोग तुम्हें पुकारेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर न देखना, नहीं तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। अब जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। शहजादी मेहनाज ने शीशे की संदूकची ली और चल दी। उसके आगे आगे बिल्ली का बच्चा चलता गया। वो एक जंगल में पहुंची। शाम हो रही थी। मेहनाज एक झोपड़ी के सामने पहुंचकर रुक गई। अचानक दरवाजा खुला और एक बुढ़िया बाहर आई। आओ बेटी आओ, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हारा नाम शहजादी मेहनाज है ना? हाँ, मैं तुम्हें मुद्दत से जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि तुम पर क्या बीती है। तुम इस वक्त गाने वाले परिंदे की तलाश में जा रही हो। ये तुम्हारा अपना घर है, फिर तुम्हें काहे का डर है? आ जाओ बेटी। मेहनाज हैरान और परेशान बुढ़िया के साथ अंदर चली गई। बुढ़िया ने उसे अच्छे खाने खिलाए, फल दिए, शरबत पिलाए। मेहनाज ने पेट भरकर खाया तो होश आया। फिर बुढ़िया से सवाल किया, अम्मा जान, आप कौन हैं और जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? बुढ़िया ने कहा कि मेहनाज बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ, सबसे अलग थलग रहती हूँ। कि मुझे वीरानों से प्यार है। मेरी ताकत की हद है न शुमार है। कहो, अभी एक पल में तुम्हारे शोहर की सल्तनत का तख्ता उलट दूं, सबको उड़ा दूं। लाओ, ये शीशे की संदूकची मुझे दे दो और फिर देखो तमाशा कि तुम्हारे शोहर के मुल्क की कैसे ईंट से ईंट बजती है और तुम्हारे साथ से मुसीबत टलती है। मगर मेहनाज ने जवाब दिया, बड़ी माँ, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे खाने पीने को दिया, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरा शोहर बहुत नेक और हमदर्द है, कसूर मेरा है ना उसका। संदूकची कभी न दूंगी, तुमसे जो बन पड़ती है कर लो, अपना जादू आजमा लो, मगर मैं अब जा रही हूँ। शहजादी ने कहा और तेजी से बाहर आ गई। चलते चलते वो एक बस्ती में पहुंची। ये खाना बदोशों की बस्ती थी। वो इस वक्त शाम का खाना खा रहे थे। मेहनाज भी खाने में शरीक हो गई। कई रोज की भूखी तो थी ही, इसलिए खूब सीर होकर खाया। खाने के बाद बूढ़ी खाना बदोश औरतें उसके गिर्द जमा हो गई। उनमें से जो सबसे अक्लमंद थी वो मेहनाज से कहने लगी, मुझे पता था कि तुम आओगी। तुम्हारा नाम मेहनाज है ना? तुमने 3 बच्चों को जन्म दिया, मगर तुम्हारी बहनों ने तुमसे धोखा किया और तुम्हारे पहलू में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे रख दिए। बस यही बात है ना? और फिर तुम्हारे खाविंद ने तुम्हें घर से निकाल दिया कि जाओ, अब लौट के मत आना, नहीं तो जिंदा जला दी जाओगी। और अब तुम गाने वाले परिंदे की तलाश में जा रही हो। ये संदूकची मुझे दे दो। मेहनाज ने कहा, बड़ी अम्मा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ये संदूकची नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी चाल को समझती हूँ और अब जाती हूँ। मेहनाज ने यह कहा और बस्ती से चल खड़ी हुई। खाना बदोश औरत चीखने चिल्लाने लगी, मगर मेहनाज आगे आगे चलती रही। आखिर वो पत्थरों के समंदर के करीब जा पहुंची। क्या देखती है कि बहुत बड़ा समंदर ठाठे मार रहा है। उसके पानी में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। दरमियान में 2 ऊंची चट्टानें हैं। शहजादी मेहनाज अल्लाह का नाम लेकर पानी में उतर गई। जो ही उसने पानी में पांव रखा, पानी उसके टुकनों तक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों की सिमत चली। जब वो चंद गज के फासले पर रह गई
तो अचानक ही चारों तरफ से शोरगुल बर्पा होने लगा। ऐसे में किसी ने जोर जोर से मेहनाज को पुकारा कि देखो मैं आ गया हूँ, मैं शहजादा हुमायूं ही तो हूँ। और शहजादी सब कुछ भूल गई, तेजी से पलट कर देखा और वो वहीं पत्थर बन गई। यहाँ से कहानी का दूसरा रुख सामने आता है। मेहनाज की बहनों ने उसके दोनों बेटों और बेटी को दूर एक गांव में भिजवा दिया था, जहां वो एक गरीब किसान के यहाँ पल रहे थे। किसान को पता था कि वो शहजादे और शहजादियां हैं, इसलिए उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरह करता रहा। वो अचानक ही बीमार पड़ गया और जब उसने देखा कि मौत नहीं टलेगी, तो उसने दोनों शहजादों और शहजादी को राज बता दिया और दूसरे ही रोज उसका इंतकाल हो गया। तीनों बहन भाई फूट फूट कर रोए कि वो तो उसे ही अपना बाप समझते थे। चंद रोज बाद ही तीनों बहन भाई घर से निकले और उसी दानिशमंद बूढ़े के पास पहुंचे कि जिसने उनकी मां को शीशे की संदूकची और सुनहरा तीर दिया था। बूढ़े ने उन्हें शीशे की संदूकची और पत्थरों की तलाश में समंदर की तरफ रवाना कर दिया। सबसे पहले सईद गया, मगर वो भी पत्थर बन गया। दूसरी बार वलीद गया, मगर वो भी लौट के ना आया। उसके बाद समीरा चली और जब वो चट्टानों के पास पहुंची तो कयामत का शोरो गुल बपा हुआ। कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। ऐसे में समीरा को आवाजें आई कि देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ, देखो मैं वलीद हूँ, मगर उसने एक न सुनी और परिंदे के घोंसले की तरफ बढ़ती गई। आवाजें और तेज हो गई, मगर समीरा ने किसी आवाज पर कान न धरा और चलती रही और आखिरकार उसने गाने वाले परिंदे को दबोच लिया। परिंदे ने कहा, ए नेक दिल समीरा, अपने चिल्लू में समंदर का पानी लो और 5 मरतबा छींटे मारो। समीरा ने ऐसा ही किया और देखा हर तरफ से लोग जिंदा होने लगे। अरे ये तो पत्थर थे, सभी इंसान बन गए, उठने लगे। कोई वजीर था, कोई अमीर, कोई सिपाही, कोई सिपा सारा। समीरा के दोनों भाई भी इंसान बन गए। तीनों बहन भाई गले मिलकर खूब रोए। परिंदे से पूछा कि उनकी अम्मी कहाँ है। परिंदे ने इशारा किया। उन्होंने देखा कि कुछ फासले पर मेहनाज खड़ी थी, उसके कदमों में बिल्ली लौट रही थी। ये भागते हुए गए और अपनी माँ से लिपट गए। माँ को समझने में कोई देर न लगी कि ये उसके दिल के टुकड़े हैं। हर माँ अपने खून और गोश्त को पहचानती है, इसी का नाम ममता है। शहजादी मेहनाज अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई और बच्चे अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर सब इकट्ठे होकर वापस सफर पर रवाना हुए। शहजादा हुमायूं अपनी बीवी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुआ और जो लोग काफिले के साथ आए थे उन्हें झोलियां भर भर के इनाम दिया। अगले दिन शहजादा हुमायूं ने मेहनाज से पूछा कि आपकी बहनों के साथ क्या सलूक किया जाए। मेहनाज ने जवाब दिया, मैं इन्हें माफ करती हूँ। हुमायूं ने कहा, क्या फिर भी वो मेरी बहनें हैं? मेहनाज ने जवाब दिया, अब तो आपको यकीन आ गया कि मैं जो कुछ कहती थी वो सच था। और शहजादा हुमायूं यह देखकर दंग रह गया कि समीरा के माथे पर सितारा झिलमिला रहा था। मेहनाज का ख्वाब सच हुआ और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप हमारा हिस्सा बन जाएंगे और हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिला करेगी। मिलते हैं आने वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।